مقدر کو جگانا چاہتا ہوں، مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ندا نیٹورک کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں ریاست گجرات کی مشہور شہر احمد آباد میں ہوں۔ احمد آباد میں ایک مشہور اور سرخیز علاقہ جو شاہ عالم کے نام سے منسوب ہے، یہاں پر ایک عظیم اور قدیم بزرگ حضرت سلطان گجرات اور شہنشاہ گجرات قطب الاقطاب حضرت سید محمد سراج الدین شاہ عالم کا آستانہ پاک ہے۔ یہاں کی چند متبرک چیزیں ہیں جو میں آپ کو زیارت کرانے کی کوشش کروں گا۔ یہ دیکھیں، شاہ عالم سرکار گجراتی میں لکھا ہوا ہے، اور اس کا یہ مین دروازہ کیا ہی خوبصورت منظر ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ اب میں آپ کو اس کے اندر لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور پھر اس کے اندر آستانہ سرکار حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کرواؤں گا، اور وہ متبرک چیزیں بھی آپ کو زیارت کرواؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ میرے ساتھ بنے رہیے، یہ خوبصورت مناظر آپ دیکھتے رہیے۔ یہ خوبصورت مناظر آپ شاہ عالم ریاست گجرات کے عظیم بزرگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ سامنے روضہ پاک دکھ رہا ہے۔ یہ روضہ کے سامنے یہ جو سب سے پہلے چھوٹا سا گنبد دکھ رہا ہے، اور یہ جو لوگوں کی بھیڑ دکھ رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سید شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد حضرت سید قطب عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار چند فاصلوں پر موجود ہے، وہاں کی بھی زیارت کرواؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہ خاص مقام اسی جگہ پر عبادت کرتے تھے۔ رات میں جب آپ سوئے تو آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ رحمت عالم نے آپ کو ایک نیک صالح بیٹا شاہ عالم کی بشارت دی۔ حضرت شاہ عالم کی بشارت سنتے ہی جب آپ نیند سے بیدار ہوئے اور اس مقام پر پہنچے تو ابھی بھی خوشبو آ رہی تھی، اور یہ جگہ خوشبو سے معطر تھی۔ حضور کی یہاں پر آمد کی پتہ چل رہا تھا، لہٰذا اپنی جگہ کو گھیروا دیا۔ آج بھی لوگ اس جگہ پر چراغ جلاتے اور اس کے تیل کو اپنے جسم میں لگاتے ہیں۔ اللہ اس تیل کی برکت سے لوگوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اب چلے میں آپ کو روضہ پاک کے اندر کی زیارت کرواتا ہوں۔ یہ سرکار شاہ عالم کا آستانہ ہے، روضہ پاک ہے۔ یہ خوبصورت روضہ آپ دیکھیں، اس کی زیارت کریں اور درود پاک بھی پڑھتے رہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا یہ عظیم اور خوبصورت یہ روضہ آستانہ پاک حضرت شاہ عالم کا اندرونی منظر ہے۔ آج میں آپ کو ایک اور ان کی عظیم کرامتیں بھی بتاؤں گا۔ یہاں پر ایک حافظ قرآن طوطا کی بھی قبر ہے۔ یہ چند قبریں آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت شاہ عالم کے پیتانے کی جانب یہ چند قبریں ہیں، اور اسی کے بغل میں یہ دیکھیے چھوٹی سی قبر ہے، یہ طوطا کی قبر ہے، اور یہ طوطا حافظ قرآن تھا۔ سبحان اللہ، یہ حافظ قرآن طوطا کیسے ہوا، اس کے پیچھے کی راز کیا ہے تو پتہ چلا۔ یہ دیکھیے تختی بھی لکھا ہوا حافظ قرآن طوطا۔ پتہ چلا کہ حضرت سید شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، تو یہ طوطا سن کر کے قرآن پاک کی حفظ یاد کر لیا تھا۔ ایک دن آپ عالم جذب میں تھے، آپ نے ایک نگاہ ڈالی اور یہ طوطا مکمل حافظ قرآن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر کہتے ہیں کہ جب حضرت شاہ عالم کبھی کبھی رمضان وغیرہ میں متشابہات جب آ جاتا تھا تو پھر یہ طوطا آپ کو لقمہ بھی دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ عالم جذب میں تھے تو پھر یہ طوطا ہلہ کرنے لگا، تو پھر اس وقت آپ نے ایک نگاہ ڈالی اور یہ طوطا اسی وقت
मर गया। आपने मुरीदों से फरमाया कि ये शहीद मोहब्बत है, एक कपड़े में लपेट कर इसे दफन कर दो। अब आइए मैं एक ऐसे मुतबर्रक चीज़ों की ज़ियारत कराऊँ। ये देखिए सामने जो दो चीज़ें दिख रही है, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए और इसकी ज़ियारत कीजिए। ये वो मुतबर्रक चीज़ें हैं, अल्लाह अकबर। ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में कहते हैं कि जिस तख्त पर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जलवा अफरोज़ हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। इसकी ज़ियारत करें और इसके पीछे की जो राज है और जो वाक़यात है इंशाअल्लाह ताला मैं तफसील से बताने की कोशिश करूँगा। यह खूबसूरत मस्जिद के दर दीवार देखें, इसके हुस्न को और इसके नक्श व निगार को ज़रा आप देखें, क्या ही खूबसूरत ये मस्जिद का हिस्सा है। और मस्जिद के दाहिने जानिब ये दो तख्त टंगा हुआ है, जो एक पर हुजूर रहमत आलम जलवा अफरोज़ हुए थे और एक पर हज़रत सैयद शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह बैठा करते थे। इसी के बगल में एक मदरसा है, जो अभी मैं आपको मदरसे की भी इजाज़त कराऊंगा। वह मदरसा जो हज़रत सैयद शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़माने में था, उस वक्त आप बच्चों को तालीम देते थे, दर्स देते थे, पढ़ाते थे। यही वो मदरसा है जिसकी इजाज़त आप करें। ये देखें मदरसा का नाम मदरसा हज़रत पीर सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन शाह आलम। यह वही मदरसा है जिसमें आप बच्चों को तालीम देते थे। इस मदरसे और ये तख्त की जो बरक़ात है और इसके जो ख़ुसूसियात हैं इंशाअल्लाह ताला मैं इसके वाक़यात बयान करूँगा। इससे फिर आप देखें ये जो सामने दरख्त दिख रहा है, ये जो दरख्त दिख रहा है, इस दरख्त के बारे में कहा जाता है कि ये मस्जिद की तामीर होने से पहले ये मस्जिद के सहन में आता था। तो मज़दूरों ने और कामगारों ने कहा कि इस दरख्त को हटाना पड़ेगा। आपने फरमाया, उस वक्त हज़रत शाह आलम के साहबजादे सज्जादा नशीं थे। आपने फरमाया कि आज तुम लोग जाओ, कल सुबह सवेरे वक्त पे चला आना। जब सुबह सवेरे दूसरे दिन कामगार और काम करने वाले मजदूरी लेबर काम करने के लिए आए तो क्या देखते हैं, ये दरख्त खुद ब खुद मस्जिद के सहन से हटकर ये मज़ार के सहन में आ गया है। सुबहान अल्लाह। ये वो करामती दरख्त है जो आज तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके चंद ज़र्रात आज भी वो हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। अब आइए मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ पर हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे पाक नालैन मुबारक की ज़ियारत कराता हूँ। यह देखिए कदमे रसूल पाक, सुबहान अल्लाह। आज मैं इसकी भी आपको ज़ियारत कराता हूँ। कहते हैं कि हज़रत सैयद शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के एक साहबजादे थे जो बहुत ही जलाली थे। जब आपका विसाल हुआ तो फिर आपके मज़ार के कब्र के ऊपर से जो भी परिंदा गुजरता था वो भी जलकर राख हो जाता था, हलाक हो जाता था। तो ख़ाम में किसी बुजुर्ग ने बताया कि इनके कब्र पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक को रख दिया जाए, इससे जलाल कम हो जाएगा। ऐसा ही हुआ और हमारे हुजूर तो सारी कायनात के लिए रहमत है, लिहाजा आपके नालैन पाक को जब इस कब्र पर रखा गया तो इससे ये जलाल इनका कम हुआ। इसके आप ज़ियारत करें। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक की वो जूती शरीफ जिसको नालैन रसूल नालैन पाक कहा जाता है, सुबहान अल्लाह। इसके खूबसूरत मंजर आप देखें, ज़ियारत करें और दुरूद शरीफ भी पढ़ें। ये खूबसूरत मंजर नालैन रसूल पाक की ज़ियारत आप करें। ये रोज़ाना बाद नमाज असर इसकी ज़ियारत कराई जाती है। तो नाज़रीन कराम, आपने ये चंद मुतबर्रक चीज़ें देख लिया, मैंने आपको ज़ियारत करा दिया। अब ये ड्रोन कैमरा के ज़रिए आप फ़िज़ाई मनाजिर आप देखें, ऊपर से मज़ार शरीफ की ये खूबसूरत नज़ारे आप देखें। और आइए मैं उस वाक़ियत को बयान करता हूँ जो अभी मैंने दो तख्त मस्जिद के अंदर लाल कलर में दिखाया था। कहते हैं कि हज़रत सैयद शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह बच्चों को तालीम दिया करते थे, दर्स दिया करते थे। अचानक बीमार पड़ गए, बीमारी की वजह से आप मदरसा जाना बंद कर दिए। फिर
काफ़ी अरसे के बाद जब आप मदरसे में पहुँचे तो बच्चों ने आगे से सबक सुनाना शुरू किया। आपने फरमाया कि मैंने तो यहाँ सबक नहीं दिया था, मैंने तो पीछे सबक दिया था। बच्चों ने कहा हजरत आपने तो रोज़ाना मुझे सबक पढ़ाया और कल भी यहाँ सबक दिया था, आप तो रोज़ाना हमें पढ़ाने के लिए आते थे। आप ये देख कर के हैरत में पड़ गए और ताज में पड़ गए कि मैं तो आता नहीं था, फिर बच्चों का सबक कैसे आगे बढ़ा। आप मुराकबे में गए और मुराकबे में गए तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाह आलम जब आप बीमार थे तो आपके शागिर्दों की शौक़ इल्म और ज़ौक़ इल्म को देखकर मैंने आपकी कमी का एहसास नहीं होने दिया। आपके शक्ल में मैं रोज़ाना आपके मदरसे में आता था और आपके बच्चों को दर्स दिया करता था। सुभान अल्लाह, कितने खुश नसीब हैं वो शागिर्द जिनको रसूल पाक पढ़ाया करते थे और जो रसूल पाक से डायरेक्ट दर्स लिया करते थे। क्या ही खुशकिस्मत वो शागिर्द थे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो जैसे ही हज़रत शाह आलम ने सुना कि इस पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हुआ, फौरन उस तख्त को उठवा दिया और ऊंची मकाम पर इसे रखवा दिया। फिर अपने लिए दूसरा तख्त बनवाया और तादम हयात उसी तख्त पर आप दर्स व तदरीस का काम अंजाम देते रहे। फिर आपके विसार के बाद इन दोनों तख्तों को इस मस्जिद के एक दाहिने तरफ ऊपर ऊंची जगह पर लटका दिया ताकि लोग इसकी ज़ियारत करें। आज भी ये ज़ियारतगाह बनी हुई है और इसके बारे में कहते हैं कि जो इसके नीचे नमाज पढ़ता है और दुआएं करता है अल्लाह तबारक तआला इसके दुआओं को कबूल फरमाता है। जब भी आप अहमदाबाद आएँ तो ज़रूर इसकी ज़ियारत करें और फिर यहाँ के फैज़ हासिल करें और हज़रत शाह आलम के फैज़ से फैज़याब हो जाए। इनकी अजीम करामतों को और ऐसी मुतबरक चीज़ों को देखकर यकीनन हम सुन्नियों का अकीदा और मजबूत हो जाता है। इसकी आप ज़ियारत करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा तो फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने घर वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को इस वीडियो को ज़रूर दिखाइए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। खुदा हाफिज़।